today I want to get into the word. तो आज वचन में जाना चाहेंगे। Yeah. Matthew 12 and verse 29. मत्ती का 12वां अध्याय 29वां वचन। How can one enter a strong man's house and plunder his goods unless he first binds the strong man and then he will plunder his goods? वचन में लिखा मत्ती का 12वां अध्याय उसका 29वां वचन, या कैसे कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है जब तक कि पहले वह उस बलवंत मनुष्य को बांध न ले और तब वह उसका घर लूट लेगा। I want you to listen very carefully और चाहते बड़े ध्यान से आप सुने, because this message is rarely preached in churches. और ये संदेश जो है कलीसियाओं में बहुत ही कम प्रचार किया जाता है। Listen very carefully. बड़े ध्यान से सुनिएगा। What Jesus was sharing was a spiritual law. और यहां पर यीशु जो बांट रहे हैं वो एक आत्मिक नियम है। The first one. पहला है, It is a spiritual law. ये एक आत्मिक नियम है। Secondly, दूसरी बात, he was talking about a warfare principle. और यीशु यहां पर युद्ध के सिद्धांत के बारे में बता रहे हैं। And thirdly, और तीसरा, he was giving us a revelation of authority. यीशु यहां पर अधिकार का प्रगटीकरण हमें दे रहे In हैं। just one verse, बस एक वचन में you have three things that no wonder that they called Jesus Rabbi, the तीन master चीज- teacher. तीन चीज हम पाते हैं और कोई हैरानी की बात नहीं, लोगों ने जो यीशु को रब्बी कहा। So first, a revelation, it's a spiritual law. तो पहला हम देखते हैं ये एक आत्मिक नियम है। Secondly, दूसरा, it's a warfare principle. और युद्ध के लिए एक सिद्धांत है। And thirdly, और तीसरा, it's a revelation of authority. और ये अधिकार का एक प्रगटीकरण है। I'll read that verse again. फिर से पढ़ेंगे उस वचन को। How can one enter a strong man's house और देखिए वचन में लिखा है, कैसे कोई मनुष्य किसी ताकतवर के घर में घुस सकता है and plunder his goods? और उसका माल लूट सकता है। Then Jesus says, unless he first binds the strong man and then he will plunder his house. आगे यीशु ने कहा, जब तक कि पहले वह उस ताकतवर यानी बलवंत मनुष्य को बांध न ले और तब वह उसका घर लूट लेगा। Today, I want to share with you, if you understand the scripture, देखिए आज आपसे साझा करना चाहते हैं, अगर आप इस वचन को समझेंगे you will be able to uproot generational strongholds that are in your family. और देखिए पीढ़ियों की जो मजबूत गढ़े हैं जो आपके परिवार में जड़ पकड़ी हुई है, आप उन्हें उखाड़ सकते हैं। That's why I call this Breakthrough Sunday. और इसीलिए इसे नाम देते हैं ब्रेक थ्रू का रविवार। Something in your life that is not of God, of course, is going to break in the name of Jesus. कुछ तो आपकी जिंदगी में जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, यकीन आज वो टूटने जा रहा है यीशु के नाम में। Something that the enemy crafted in your life over the years is going to be breaking in the name of Jesus. Let me hear your loudest hallelujah right ऐसी चीज now. जो शत्रु ने सालों से जो है आपके जीवन में एकदम रची है, आज वो तोड़ी जाने वाली है, थोड़ी जाने वाली है। Hallelujah. हालेलुया। Write it down. लिख लीजिए। There are 4 questions that we're going to answer today in today's verse. और देखिए आज के इस वचन में 4 ऐसे सवाल हैं जो हमें पूछने होंगे। The first one, पहला है, who is the strong man? और ये बलवंत मनुष्य यानी ताकतवर व्यक्ति जो है ये कौन है? In Matthew 12:29, who is the strong man? मत्ती का 12वां अध्याय 29वां वचन, ये ताकतवर व्यक्ति कौन है? Who is the strong man? The second question, दूसरा, what is his house? उसका घर क्या है? Look, it says a strong man's house. देखिए वचन में लिखा है उस बलवंत मनुष्य का घर। बलवंत मनुष्य का घर. What is the strong man's house? उस बलवंत मनुष्य का घर क्या है? Then it says, and plunder his goods. What are his goods? Listen carefully. उसका वो माल लूट ले, उसका माल क्या है? And the fourth thing और चौथा, is, how is he bound? उसे कैसे बांधा जाता है? Is anybody understanding क्या something? कोई समझ Now, है? though, if you have come here for the first time, देखिए अगर आप पहली बार यहाँ आए हैं you may think, what is this bunch? What is this people talking about? और अगर आप सोच रहे हैं कि ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, But give me 5 minutes, लेकिन 5 मिनट दीजिएगा, then you will chase me in the green room. I promise you. फिर आपसे वादा करते हैं कि ग्रीन रूम तक आप इनका पीछा करेंगे And you will find it difficult to reach me, of course. Yeah. और इन तक पहुंचने में आपको So बहुत ही it's better मुश्किलों you का listen सामना to the करना word now. पड़ेगा। लेकिन जरूरी कि पहले आप वचन को सुने, Look at somebody and say, listen carefully. किसी को देखकर के ध्यान से सुने। So the first question is, what is the strong man? तो पहला सवाल ये उठता है कि ये ताकतवर यानी बलवंत आदमी कौन है? Listen to this. लिख लीजिए। One day, Jesus was casting out demons. और एक दिन यीशु दुष्टात्मा को निकाल रहे थे And the Pharisees come to him. और फरीसी लोग उसके पास आते हैं And they started condemning him, accusing him, and says, you are casting demons by Beelzebub.
और वे आकर यीशु की निंदा करते हैं, आरोप लगाते हुए कहते हैं कि तुम बाल ज़बूब की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकाल रहे हो। You are casting out demons by using the power of Beelzebub. तुम बाल ज़बूब की शक्ति का इस्तेमाल करके दुष्ट आत्मा को निकाल रहे हो। And that time, और उस समय Jesus explained to them kingdom order. Everyone say kingdom order. और यीशु ने वहां पर जो राज्य की जो व्यवस्था है, जो क्रमानुसार है, वो सब बताए। Hello, are you listening right now? क्या आप सुन रहे हैं? He said Satan cannot cast out Satan. तब यीशु ने कहा कि शैतान खुद शैतान को नहीं निकाल सकता, यानी दुष्ट आत्मा निकाल नहीं सकती एक दूसरे को। Write it down what I'm saying. And let me ask you a question. Satan cannot cast out Satan. शैतान खुद शैतान को नहीं निकाल सकता। Yes? Now let me ask you a question because you said yes. और चलिए एक सवाल पूछते हैं आपसे, क्योंकि आपने हाँ कहा ना। तो ये जो झड़ा फूकी करते हैं वो दुष्ट आत्मा कैसे निकालते हैं? No. He's right. Many people don't know this. बहुत सारे लोग How many of you want to know the answer? कि तो जानना चाहेंगे जवाब। Come next Sunday. अगले रविवार को आइएगा। I got you. I'll tell you today. बताएंगे आप। Listen to this. Jesus established a principle over here. और यहाँ यीशु ने एक सिद्धांत को स्थापित किया। And he says Satan cannot cast out Satan. In other words, one demon cannot cast out another demon. और यीशु ने कहा कि शैतान शैतान को नहीं निकाल सकता, यानी कि एक दुष्ट आत्मा दूसरे दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सकती। So how do these people, these on the other side, look at somebody say other side. तो देखिए दूसरी ओर के How लोग do they do it? कैसे वो करते हैं। Here's the thing. अब सुनिएगा, I want you to understand this. चाहते आप समझे इसे। When you go to them जब आप उनके पास जाते हैं and tell them, और कहते हैं, look, I have a problem. और देखो ये समस्या है मुझे। Now, people, I'm not somebody who, I don't know how to put it. I was a very rational person, still am. और देखिए पास बजे ऐसे बहुत ही दिमागी I did लगा, not believe in this demon stuff and all. और ये दुष्ट आत्मा की सारी Until चीजों I में यकीन नहीं करता। encountered this on the first hand basis. और जब तक खुद इनकी मुठभेड़ नहीं हो गई। Yes, so let's not go into that, okay? So how they do it is this. तो कैसे ये किया जाता है When you सुनिए। go to them, जब आप उनके पास जाते they हैं said, sir, I says, hey, this demon problem is there. Oh, no problem, we'll do it. और जाकर उनको कहते हैं देखो ऐसी ऐसी समस्या, ऐसी दुष्ट आत्मा का प्रकोप सब है। So what they do is, तो वो क्या करते they हैं? said, fine, वो कहते हैं ठीक है, you'll have to bring some meat, you'll have to bring some barley. और तुम्हें कुछ मांस कुछ बाटली लाना होगा। Barley, you understand barley? आपको समझ में आया We बाटली? Maharashtrians understand barley. Barley is not the bottle, okay? And then they say, once you bring that, फिर वो कहते हैं जब तुम एक बार ये लेके आओगे you give my fees also. तो मेरा फीस भी तुमको देना है, And then the demon will go. और फिर उसके बाद दुष्ट आत्मा चली जाएंगी। And indeed, और सचमुच after a few days, कुछ दिनों के बाद- or immediate, the demon goes. दुष्ट आत्मा जो चली जाती हैं। That is the law of appeasement. Everyone say appeasement. How many understand? कितने समझ गए? ये खुश करने का एक नियम है। So somebody said over there, compromise. That's true. किसी ने कहा वहां पे समझौता करना। So what they do is, तो क्या करते हैं? they talk to the small demon. वो दुष्ट आत्मा छोटी दुष्ट आत्मा से So बोलते you हैं, move out of the way. ओके तुम रास्ते से हट जाओ। So the fellow says, okay. तो वो व्यक्ति कहता ठीक है। Says, why? क्यों? Because a bigger demon is coming. क्योंकि अभी बड़ी दुष्ट आत्मा आ रही है। And now the condition of that person और देखिए अब उस व्यक्ति की हालत becomes worse than the first. पहले से ज्यादा बदतर हो जाती है। He or she finds relief for 6, 7 days, 15 days. And now they are hooked onto that guy that, look, this guy has a solution. और देखिए कुछ दिनों तक देखिए वो चाहे स्त्री हो पुरुष हो, उन्हें आराम और राहत मिल जाती है। Immediate relief. तुरंत ही आराम राहत मिलती है। That's why इसलिए when these builders and all, they have a problem, they go over there. As long as the thing is sold off, it's done. But once the thing is sold off, that place is again demonized. Oh, you didn't understand. आप नहीं समझे। There is this place in Mumbai देखिए मुंबई शहर में एक जगह है where a family called me up and said, we are leaving this place. There was this girl at her desk studying. Now she is, I don't want to take her name, I don't want to give you any clues, but here it is. She is a very learned person. और बहुत ही वो She's a शिक्षित researcher, और रिसर्च करने वाली लड़की, very sharp looking woman.
एकदम धारदार दिखने वाली, And she's a Christian. और वो एक मसीह भी है। She travels internationally. अंतर्राष्ट्रीय तौर पे वो उड़ान भरती है, And she was at her desk working. और वे अपने डेस्क पर बैठ के काम कर रही थी। It was not in middle of the night, it was night. And this, something tells her, go out near the balcony and jump. और रात के समय देखिए वो काम कर रही थी, तो कुछ The thing was so strong. और कोई आवाज से कह रही थी बालकनी पे जाके She वहां took a छलांग मारो। coffee and stood at the balcony, and the thing is telling her, jump, you will fly. Jump, you will fly. और वो आवाज उससे कह रही, जब वो बालकनी में जाके खड़ी हुई तो छलांग मार दो She और तुम उड़ने shook it लगो। off. वो She हिल was गई, alone at home. घर में अकेली थी, And she came in और अंदर आई and she started reading the Bible. The thing stopped. और बाइबल पढ़ना शुरू कर Wait, दिया तो वो चीज रुक wait, गई। wait, सुनिए सुनिए, wait. Story is not over. Wait. Immediately after some time, और तुरंत ही कुछ समय के the बाद floor on the opposite wing, somebody jumped and died. सामने वाले उस विंग में से किसी ने छलांग मार दिया। This is the third suicide happening in that society. उस सोसाइटी में ये तीसरी खुदकुशी का कार्य हुआ। This is, Pastor, what we must do. I told them, move out of that place. उन्होंने Because सोचा there बाबा is- क्या करें? that place is demonized. Now, when you go to these people, देखिए जब आप इन लोगों के पास जाते हैं, they use the law of appeasement. How many understand what I'm saying? इस तरह से खुश करने का जो नियम, समझौता करने का जो नियम है उसका इस्तेमाल करते And हैं, you get immediate relief. और तुरंत ही आपको राहत मिलती है। But that is not casting out demons. लेकिन ये दुष्टात्मा को निकालना But नहीं when हुआ। you come to Jesus, लेकिन जब आप यीशु के पास आते हैं, it does not happen immediately because there is a war. You are not appeasing, you are casting that fellow देखिए out. वहां पर तुरंत ही आपको राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि आग लड़ाई छिड़ जाती है। आप देखिए वहां उस चीज को खुश नहीं कर रहे, आप उसे निकाल रहे हैं बाहर, That's what I want you to understand. और यही चाहते हैं कि आप समझें, It's war. ये एक लड़ाई है। You are taking somebody out. आप किसी को पकड़ के उस जगह से बाहर निकाल रहे हैं। That's why Jesus said, इसलिए यीशु ने कहा, Satan cannot cast out Satan. शैतान शैतान को नहीं निकाल सकता। Jesus gave us a clue in the Gospels. He says, when one demon leaves, he brings 7 other demons. और यीशु ने देखिए सुसमाचार का सबूत पेश किया कि जब एक दुष्टात्मा निकल जाती है तो अपने साथ और 7 दुष्टात्मा को ले आती है। There are many ways that demon can leave. और ये कई तरीके हैं दुष्टात्मा निकलने का। Is anybody following me what I'm saying? So the first principle you need to, I've explained to you how these warfare things works. तो देखिए पहला सिद्धांत आपको बताया कैसे ये लड़ाई की चीजें होती हैं। So who is the strong man? तो ये बलवंत मनुष्य कौन है? The strong man, Matthew 12 please. Yeah. मत्ती का 12वां अध्याय। I want that on the screen. The strong man refers primarily to a demonic entity that holds a particular family, a particular area under its sway. और देखिए बलवंत आदमी जो Or है, it can directly refer to Satan. और देखिए ये बलवंत मनुष्य जो है, ये शैतानी शक्ति, ये कहे सीधे तौर पे ये शैतान होता है जो परिवार को या इलाके को पकड़े रखता है। But in this case, let us not talk only about Satan. Let's talk about a ruling power. Everyone say, a strong man is a ruling power. और चलिए इस मामले में सिर्फ शैतान के बारे में बात नहीं कर रहे, लेकिन जो शासन करने वाली जो शक्ति होती है उसके बारे में बात करेंगे। Write it down. The second thing you need to understand about a strong man is, are you writing it down? क्या आप लिख रहे हैं इस वक्त? They operate at levels. और देखिए बलवंत मनुष्य के बारे में दूसरी चीज ये है कि वो स्तर से काम करते A हैं। strong man will not attack a person. और देखिए बलवंत मनुष्य एक व्यक्ति पर हमला नहीं करेगा। After the service, somebody will write, yeah, Pastor, I was attacked by a strong man. और देखिए सभा का कोई लिखा, हाँ पासवान जी एक बलवंत मनुष्य के द्वारा मुझ पर हमला हुआ। Some people like to glorify themselves. और कुछ लोग जो अपनी बड़ाई करना पसंद करते हैं, Pastor, पासवान जी yesterday Satan came. कल ना शैतान आया था। Yes, you are junior Jesus. हाँ तुम तो जूनियर यीशु हो ना। Please. Hello, are you listening right now? आप सुन रहे हैं इस वक्त? Look, you are not worth Satan's time. I'm serious, huh? I'm serious. This guy, he deals with presidents, he deals with top people. Hello. So he will not come and disturb you anyway. He's got his minions to do that. So don't speak all this stuff. तो देखिए ये सारी चीजें आपको नहीं बोलनी है। Look at somebody and say, this is grounding, okay? So after the service, don't write to me. Yes, Pastor, strong man came to my house. No. So how does a strong man? Strong man usually works over a family, और देखिए एक बलवंत मनुष्य अक्सर जो एक परिवार पर काम करते हैं over a particular area. या फिर किसी खास क्षेत्र इलाके पर। Now see this, family, area, city,
nation. So there are delegated levels where the strong man operates. Listen carefully. तो देखिए ऐसा सौंपा गया स्तर होता है जिसके मुताबिक बलवंत मनुष्य काम करते हैं. Daniel chapter 10 verse 13 calls it a territorial spirit. और दानियल का देखिए 10वां अध्याय 13वां वचन वहां पर लिखा है इन शक्तियों को जो है इलाके की शक्तियां, Territorial spirit. इलाके पर शासन करने वाली शक्तियां. I did not believe in all this. और इन सारी बातों में विश्वास नहीं करते I थे. was in Goa. पास में गोवा में थे. A mother came to me, एक माँ आई इनके पास and side of this mother और उस माँ के बगल में was a nice, handsome fellow, tall fellow, but he was shaking. He's shaking, literally shaking. एक अच्छा सा व्यक्ति, लंबे कद का व्यक्ति जो खड़ा था और वो लगभग कांप रहा था. Very funny to see a tall guy shaking literally with fear, like this. So I asked, what happened? तो इन्होंने उनसे पूछा क्या हुआ, किधर झालंय? What happened? क्या हुआ बताओ. So he said, किधर सांगू रे? He तो said- बोलने लगी क्या he said, बताऊं. this fellow of mine, he sings, my only son. ये मेरा इकलौता बेटा है ये, He says he abuses me, और ये मेरा शोषण करता he है, kicks me, मुझे मारता है and does all sorts of और nonsense. सब प्रकार के बेतुका काम करता है. He had a job, he quit his job. और इसके पास अच्छी नौकरी थी, नौकरी छोड़ दी इसने. He says he comes from the ship, takes his money, drinks, parties with women and people in the fields and things like that. He says, last night, और वो कहने लगी कि जहाज पर से आता है, पैसे लेता है, जाता है, सब उड़ा देता है, लेकिन पिछली रात ऐसा हुआ, he says, God heard me. परमेश्वर ने मेरी सुन ली. So I said, God heard me, then why he is trembling? तो इन्होंने कहा कि परमेश्वर ने अगर आपकी सुन ली तो ये कांप क्यों रहा है. He's saying, तुका कितना सांगू रे? He's saying, वो कहने लगी कि आपको क्या बताऊं मैं. he's saying, सांग रे. तो इन्होंने कहा बताओ मुझे. He says, Pastor, वो कहने लगी पासवान जी I was in the field. मैं खेत में था. He says, we were drunk in the field. हम वहाँ मैदान में खेत में हम शराब पी रहे थे. He says, around about late in the night, it seems, one big man came, it seems. और देर रात हो गया तब एक बड़ा आदमी हमारे सामने आया And we could hear this fellow walking. और हम उसके चलने की आहट सुन पा रहे थे. He was a very tall guy. एक बहुत ही लंबा व्यक्ति. And he said, he kicked me like this. और उसने कहा कि उसने मुझे ऐसा लात मारा. Says, even I was feeling like laughing. कभी हंसने आ रहा. I looked up to Jesus that time. In my mind, I thought, अच्छा हो गया लात मारा तेरे. माँ को मारता है. He says, I fell in the nala. फिर उसने कहा कि मैं नाले में गिरा. He says, my friends were also kicked, it seems. और उसने बताया कि मेरे दोस्तों को भी लात पड़ी. He's saying, one fellow's leg is twisted, he's saying. और फिर आगे कहने लगा एक का तो टांग ऐसे बदल. And we saw the guy going. और हमने देखा उस व्यक्ति को जाते हुए. He's saying, one fellow is in the hospital. फिर आगे बताया कि एक व्यक्ति जो अस्पताल में पहुंच गया. And said, Maka 2 दिवसांनी ताप आयला. और मुझे 2 दिन से तेज बुखार चढ़ा हुआ है. He's shivering. एकदम कांप रहा था. And then his mother said, फिर उसकी माँ ने कहा he says, that thing rules over that land. वो चीज जो है उस इलाके पर शासन करती है. These are territorial spirits. और ये इलाके पर शासन करने वाली आत्माएं हैं. There the Bible speaks about territorial spirits. और बाइबल इस तरह की आत्माओं के बारे में बताती That's है. why certain lands cannot be developed. और इसी Are you वजह से listening now? कुछ जमीन पर जो है चीजें बन नहीं पाती हैं. Pastor, I'm trying to build my house, I'm trying to do this, trying to do that, and there's a court case. Court cases are manifestations of that. और देखिए अदालती मामला जो है ये तो उसी शक्ति के का प्रगटीकरण हो रहा है. Are you understanding? Or should I put some water and finish it? I want you to understand. और चाहते कि आप समझे. The house raises up half and it's there. और देखिए घर काम शुरू होता है आधे पे ही रुक People जाता are है. fighting over a piece of land. और- And if you see it from outside, they are fighting over something very silly. और लोग जमीन के कुछ They are fighting, हिस्से के लड़ते हैं. बाहर से आप देखिए तो पता चला अरे ये तो मामूली सी बात है. Look at somebody and say, strong man. किसी को देखकर कहें बलवंत This is मनुष्य. the reason for these things. I want to show you how this person operates. What is a strong man? और देखिए बलवंत मनुष्य क्या है, कौन है. Insert. Is anybody listening over क्या here? कोई सुन रहे हैं यहाँ पर. So strong man holds territories. तो ये बलवंत मनुष्य जो होते हैं इलाकों पर शासन करती हैं. Second one, दूसरा write it down. Household patterns. Write it down. Say it, everyone. Household patterns. Come on, louder, please. Household patterns. Now, I want you to go with me right now. Go to Joshua chapter 7, please. Hurry up, please. चले जाएंगे इस समय यहोशू की पुस्तक उसका 7वां अध्याय. Joshua. Jesus. Joshua chapter 7. यहोशू का 7वां Can अध्याय. you give me the Joshua chapter 7? Now that is homework for you. Look at somebody and say, तेरे लिए homework है भाई.
कोई लोग होमवर्क लेते हैं करते नहीं, like those children, no? Yes, I don't want to get into that now. चलिए उसमें नहीं जाना If चाहेंगे. you read Joshua 7, अगर आप पढ़ेंगे यहोशू का 7वां you अध्याय, will see certain patterns in that family. आप देखेंगे वहां पर परिवारों में कुछ ऐसा चलता आ रहा चक्र सिलसिला. Look at somebody and say patterns. Now, in certain families, there are patterns of alcohol. और कुछ परिवारों में देखिए शराब का सेवन का चलता आ रहा सिलसिला होता है. Come on, come on. Hello, चलिए, are you चलिए. listening? Grandfather was alcoholic. और दादा शराब का सेवन करते थे. दारू की भट्टी चलाते थे. Come on now. सब पी के मगन टाइट. बेटा पीता है. बेटे का बेटा पीता है. And the whole family is bound with alcohol. और पूरा का पूरा परिवार जो है शराब के सेवन में बंधा हुआ And है. the women are praying. और महिलाएं प्रार्थना कर रही हैं. प्रभु मेरे पति को छुड़ा. प्रभु मेरे पति को छुड़ा. And they are breaking their heads. और वे अपने सिर माथा फोड़ रही हैं. Nothing happens. लेकिन कुछ नहीं होता. Family pattern number 1. In certain families there are patterns of miscarriages, और कुछ परिवारों में देखिए गर्भ गिरने का ऐसा सिलसिला चलता है. barrenness. बांझपन. 4th, adultery. और देखिए व्यभिचार. Grandfather was a Casanova. Don't ask me who's he. He had a beautiful wife, और देखिए उसकी पत्नी तो एकदम खूबसूरत सी, but he was jumping everywhere. लेकिन हर जगह पर छलांग मारता रहा. And that thing has come into the son. And the marriages in that family are broken. And people are talking with, shh, shh, don't say Lily. Why? No, you cannot talk about Lily in this house. You can't talk about Tina also. लिली के बारे में, टीना के बारे में तुम नहीं बात कर सकते इस घर में. But why? Shh. देखियो चुप रहो. They all hushed. वे सब कुछ छिपाते हैं. There are certain patterns in the family. And what happens is the young boy comes, nacha bacha, bar kya hala hai? Bar kya, you know? You know bar kya, na? Small boy. If you're American, you'll not understand. Small. Oh, people are happy. Barkia is come. Wow. लोग खुश हो जाते हैं. अरे बारक्या आ गया. But now as Barkia grows, लेकिन अब बारक्या बड़ा होता है. he's struggling with certain patterns. और कुछ सिलसिले से चक्र से He says, why am संघर्ष I करता है. going through this sinful desires? और Why am I being attacked with these demonic powers? और क्यों इन पाप में अभिलाषाओं में से मैं जा रहा हूं? क्यों ये शैतानी शक्तियां मुझ पर हमला कर रही हैं? Beta, because that ruling power is there over your family. क्योंकि वो शासन करने वाली शक्तियां जो अभी भी तुम्हारे परिवार में हैं. Hello? Everyone say patterns. सब लोग कहें वो Let me सिलसिला. make this and then I will speed up. Listen to this. Fifthly, I'll just share the common ones. The rest you decide. There is unexplained financial losses. You see certain families, they make stupid decisions आप देखें कुछ परिवारों को देखें बेतुका फैसला लेते हैं regarding finances. पैसों के क्षेत्र में. नहीं वो आया मेरे को बोला हेलो मैंने उठा के 5 लाख दे दिया. उठा के 5 लाख दिया. मैं इतना अनाउंसमेंट करता तो 100 रुपए नहीं देता है. Sorry, that was bad, you know. Jesus, that was, some people came alive. Jesus, okay. No, he was very this thing now. So I just gave, and pastor, it has been 3 years now, 5 lakh rupees. Oh, nonsense. So much announcement I do and you don't give 100 rupees. You put 101. The coin shakes like that, you know. Sound offering, you know. Sound offering. आवाज करने वाला offering. नहीं पास्टर प्रेयर करो ना. अच्छा ठीक है प्रेयर किया टेस्ट में हेलो प्रेज द लॉर्ड ओके 5 लाख आ गया. अच्छा 3 महीने बाद पास्टर अरे वापस. No, my son actually he went now like this. He went, he jumped, the bike went off, he flew bike there. Thank you Jesus, hallelujah. What is this nonsense? Every 3 months, 5 months, this month, money is going. हर 3 महीने में 5 महीने में पैसे बस जाते रहते And हैं. you're giving prayer requests. और आप अपनी प्रार्थना कर देते रहते हैं. And you're harassing you're telling the pastor, sorry, mistakes, I was late now yesterday. You're telling the pastor, आप पासवानों को बोलते हैं pastor, this money went and this happened, that happened, crow came, this came, that came. Something or the other is happening. And the issue is, और मामला ये है is always your finances. और ये हमेशा आपके पैसों के क्षेत्र में होता है. Anybody understand what I'm saying? क्या आप समझ रहे हैं इस वक्त? Maybe you know somebody sitting next to you. शायद हो सकता है आप किसी को जानते हो जो आपके बगल में बैठे हो.
These are patterns. और ये एक चक्र है, सिलसिला है। There is something that is controlling your money. और कुछ तो ऐसी चीज है जो आपके पैसों पे हक जमाए बैठी है। Today in the name of Jesus, I pray this will break over your life. आज यीशु के नाम में प्रार्थना का ये चीज आपकी जिंदगी में टूट जाएगी। Generational patterns. पीढ़ी दर पीढ़ी चलने These वाला are सिलसिला। patterns. और ये सिलसिला चक्र है। Somebody say, I'm receiving this word tonight. This evening, this afternoon, I'm receiving this word. दोपहर के सोचो मैं ग्रहण करता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Is anybody following me right now? क्या कोई समझ है इस वक्त? And lastly, और so आखिरी। first, so a strong man is manifested in these three areas: is a territorial pattern, family patterns, and thirdly is mindsets. Everyone say mindsets. Mindset मतलब सोचने का तरीका. जोर से बोलिए सोचने का तरीका. सब लोग सोचने का तरीका, जोर से मानसिकता। बोलिए. Go to 2 Corinthians chapter 10 please. Hurry up. चले जाएंगे इस समय दूसरा कुरिन्थियों उसका So 10वां अध्याय। what is a strong man? ये आपको समझना बहुत जरूरी है. कैसे वो strong man क्या है? मैं strong man, मैं खुद ही strong हूँ. अरे बाबा सुनते पहले, बाद में बात कर. आजकल पब्लिक सुनती कम है, बात करता ज्यादा है. 2 Corinthians 10 verse 4. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God for pulling down what? Strongholds. Pastor, please. और देखिए वचन मिलेगा, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार ये शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। Now, I told you strongholds. There are territorial strongholds. Do you know in certain areas there is a particular type of sin? Hello. आप जानते हैं कुछ ऐसे क्षेत्रों में देखिए खास किस्म के पाप होते रहते हैं। You enter that area and you like, oh, what's this? और आप उस क्षेत्र में जाते हैं और आपको अचानक लगने लगता है And- ये क्या है? Come on, in Mumbai there are areas now like that. And in that area, that sin is so dominant. और उस क्षेत्र उस इलाके में वो पाप इतना ज्यादा होता है। There is some areas where you know those things which are sold are stolen. और ऐसे कुछ And you park your car over there, your tire is missing. और आप अपनी कार वहां पार्क करते हैं और आपके कार की टायर गायब हो जाती है। And one fellow comes and says, सस्ते में टायर, सस्ते में टायर. It's your- And you also go there and buy. Oh, सस्ते में मिला. अरे तेरा neighbor का ही चोरी किया उसने. And you go over there. You are patronizing those places. सस्ते में मिलता है ना. तेरा गाड़ी कर, तेरा भी सस्ते में जाएगा फिर. Now why making fun of this is? और देखिए क्यों मजाक के रूप में पेश कर रहे The हैं। thing is, देखिए मामला ये, till now we are taking this very lightly. अभी तक देखिए इन चीजों को हमने बहुत ही हल्के में लिया है। कोई कोई एरिया में प्रोस्टिट्यूशन चलता है, कोई कोई एरिया में दारू बिकती है, कोई कोई एरिया में चोरी होती है, कोई कोई एरिया में स्कैमर लोग हैं. नॉर्थ इंडिया में एक जगह है, वहां पे उसको विलेज को स्कैमर विलेज बोला है. सबको पता है वहां पे स्कैम चलता है. छोटे छोटे बच्चे स्कैम करते हैं. बोले होता कैसे? टेरिटोरियल स्पिरिट्स. Las Vegas, praise the Lord. Oh, it lights. It's called Sin City. लॉस वेगस को जो है पाप का See, शहर you're कहा saying जाता है। yes, 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 but you're not understanding why. आप कहते हैं हाँ हाँ हाँ, लेकिन आप नहीं समझते क्यों? Territorial spirits. इलाके पर हक जमाने वाले आते They hold even families. हैं। वो हक जमाए रखते हैं यहाँ तक कि परिवारों पर भी। So I'm just, are you understanding anything? आप समझ रहे हैं इस वक्त? Second thing is family patterns. और दूसरा है पारिवारिक ऐसा पैटर्न यानी चक्र। Hello, are you listening, church? Sin, incest, adultery, suicidal tendencies, पाप, व्यभिचार, खुदकुशी के विचार, financial problems. पैसों की समस्या है। Father was always borrowing. He borrowed from this, and he disappeared. He told people, you're taking everybody to Dubai. He only went to Dubai. Hello. चोरी चकारी सब ये फैमिली में है. Family patterns. There is something holding that family. और कुछ तो ऐसी चीज जिसने उस And the परिवार को third पकड़ one रखी है। is mindsets. Everyone say और mindsets. तीसरा है मानसिकता। Paul says these are strongholds. Everyone say strongholds. फिर पौलुस कहते हैं कि ये मजबूत गढ़ Go, है। give me verse 5, please. Casting down. Now see, what are the strongholds? Casting down arguments. Everyone say what? Arguments, Pastor? I thought it's some demons. Arguments? Yes. And every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every what? Thought. My God, thought, yes. Into captivity to the obedience of Christ. So, Paul is talking about the strongholds of the mind. और यहाँ पर प्रेरित पौलुस जो है मन के जो मजबूत गढ़ों के बारे में बता रहा है।
Have you seen somebody क्या आपने देखा किसी को that you explain to them in such detail about Jesus? आप उन्हें यीशु के बारे में इतनी सटीक सब कुछ जानकारियां दे देते हैं, You'll call their name. आप देखिए नाम बताते हैं, You'll tell them the color of the intestine, of their life and all that stuff. उनके जीवन के बारे में सब गहरी बातें आप बता देते हैं उन पर, But still, फिर भी have you seen such people? क्या आपने देखा ऐसे लोगों को? जलता नहीं इधर, बाजू को नहीं देखना, सीधा देखकर बोलना ट्यूबलाइट. See, why I'm explaining to you in this simple manner is, these are difficult topics, but when you learn like this, it will go deep inside of you. देखिए ये गहरे विषय, लेकिन अगर आप सीखेंगे समझेंगे तो ये आपके अंदर चला जाएगा. So we saw three things. तो तीन चीजों को हमने देखा. We saw territorial spirits. हमने इलाके पर We आदमी, saw family patterns. हमने देखा पारिवारिक ऐसे सिलसिला, And also we saw mindsets. और Everyone say हमने यहाँ तक कि mindsets. मानसिकता को भी देख लिया. There are certain families, तुम उनके जाओ ना, हेलो सर, आपकी बीवी है क्या घर पे? बीवी से बात नहीं करता हूं मैं. बात नहीं करते हो? कैसे फिर करते हो? व्हाट्सएप. तेरी तो व्हाट्सएप. हम लोग चिट, चाबी उधर छोड़ते हैं कारपेट के नीचे. हेलो. You see, certain families there is a spirit of unforgiveness. अब देखिए कुछ परिवारों में देखिए अक्षमा की आत्मा का कार्य होता है. Wife not talking to husband. पत्नी जो है पति से बात नहीं करती. क्यों? शक्कर ज्यादा था इसलिए. तेरी तो शक्कर ज्यादा था इसलिए बात नहीं कर रहे. मैं सोचा कुछ खून वून हो गया तुम लोग का. पास्टर हमेशा वो ना ज्यादा नमक डालती है. उसको मैंने बोला था पास्टर थोड़ा मेरा प्रेशर है सर, नमक कम डालो, ऐसा डालो. अरे छोड़ ना नमक, तू जोमेटो से मंगाना, बात कर अभी. छोटे छोटे चीजों के लिए. और वही नहीं, पूरा फैमिली में ऐसा चलता है. भाई भाई से बात नहीं कर रहा है, इससे नहीं कर रहा है. नहीं उसने लास्ट टाइम क्रिसमस को विश ही नहीं किया. विश नहीं किया तो क्या हो गया? तू करना भाई. नहीं हमेशा करता है बच्चा, मेरा बर्थडे रहेगा तो मैं, उसका बर्थडे रहेगा तो फोन करता, वो बर्थडे रहेगा तो नहीं करता. अरे छोड़ना यार. There are certain mindsets. Everyone says soch. There are mindsets. ऐसी सोच, ऐसी मानसिकता And you होती है. look at certain families. और जब आप कुछ परिवारों को देखते हैं, And you will not know it because you are part of the crew. और देखिए आप नहीं जाने क्योंकि आप भी उसका हिस्सा हैं. You're part of the crew, gang, you know. But when somebody comes from outside, लेकिन जब कोई बाहर से आता है, you all behave in a certain manner. आप अलग तरह से हरकतें करते हैं. That's a mindset. यह है मानसिकता, सोच. Certain families, they get offended fast. और कुछ परिवार में बड़ी आसानी से वो ठेस लग जाती है. Some people get, hello, सुनिए, did we take the offering? Such things you must not tell before the offering. I will tell you. Certain families, there are certain mindsets. सब जो बोले, कोई परिवारों में बोले कोई परिवारों में सोचने का तरीका होता है. सोचने का तरीका होता है. और तुम नहीं जानोगे क्योंकि तुम उस मंडली के हिस्से हो. लेकिन जो बाहर वाला आता है ना, वो दिखता है उसको. कह रहे लोग यार ये ऐसा कैसा है, ये ऐसे कैसा है ना, हमारे परिवार में ऐसा नहीं करते. अच्छा, बोले क्यों? पता नहीं, ऐसे ही है. सर ये सोचने का तरीका है. सोचने का तरीका, जोर से बोलिए, सोचने का तरीका. And this is there in the family. और यह परिवार में होता है. I want you to understand this. और चाहते हैं कि आप इसे समझें. Pastor, how do you know? Earlier I used to talk to people. Listen to me, I'll tell you. Don't और get me पहले wrong. लोगों से I बातचीत used किया to करते इस meet बारे. people. But then there are people who don't understand. So I said, fine, I will go into the teaching ministry and I will explain so that everybody understands. And those who receive will be free. तो लोग समझते रहते, उन्होंने कहा ठीक है मैं शिक्षण की सेवकाई में जाऊंगा, फिर मैं सिखाऊंगा. जो लोग समझेंगे वो लोग आजाद हो जाएंगे. I used to sit with people for hours, as Pastor Julian. Sit with people for hours. और घंटों घंटों लोगों के साथ बैठते थे. We used to have counseling day. You know what is the problem? अब जानते समस्या क्या? उनको स्क्रिप्चर दो, उनको क्या दो, उनके लिए उपवास करो. तुम्हारी पैंट नीचे आती है उपवास करके. ना सच में, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं. और बाद में 10 दिन के बाद वो वापस आता है, पास्टर दूसरी स्टोरी, शोले 2. क्या चिल्ला रहे हो भाई? ये सब हो चुका है. भाई साहब ने रिलीज नहीं किया, ये लोग रिलीज कर दिए लोग ने.
पास्टर ऐसा होगा, आपने बोला, वो जो बोला वो नहीं करेंगे, खुद का कुछ करेंगे आएंगे। अरे मैंने जो बोला था किया क्या? एक्चुअली ना पास्टर वो घूम गया चिट। अरे तेरी तो माइंडसेट्स, मानसिकता। I want you to understand this. Everyone say mindsets. सभी लोग कहें इस समय You मानसिकता। tell the person, see what you're doing is wrong. अब उस व्यक्ति से देखो जो तुम कर रहे हो गलत है, फिर भी वो 15 days ढीला he'll कर- do the same thing and come. और जाके फिर वही चीजों को करके आएंगे। I want to warn you. आपको चेतावनी देना चाहते हैं। Sir, I want to warn you. जनाब देखिए, आपको चेतावनी The देना चाहते way हैं। you behave is because of these things. और जिस तरह से आपका बर्ताव होता है ना, वो इन्हीं चीजों की वजह से You may है। put a cloth on your face, and come to church and act like Michael the archangel or God knows who. But today, if you want to be free, you have to honestly deal with these things. Somebody say amen. अगर देखिए आज आपको आजाद होना है तो आपको ईमानदारी से इन चीजों से निपटना पड़ेगा। Hello. सुनिए, That's why I'm taking time. मैं आपको गोली दे रहा हूं, हंसा रहा हूं, बहुत कुछ कर रहा हूं, ताकि ये गोली आपके अंदर घुस जाए। These things are not easy. और ये चीजें आसान नहीं You है। have to deal with these things. आपको इन चीजों से निपटने की जरूरत है। What is a strong man? ये बलवंत मनुष्य कौन है? This is a strong man. यही है बलवंत मनुष्य। Let's go further right now. चलिए आगे जाते हैं। What is his house? Let's look at his house. चलिए देखते हैं ये घर क्या है। Now, Jesus describes, give me the first scripture, please. The first scripture. Jesus describes a strong man as having a house. और यीशु ने देखिए बताया कि वो बलवंत मनुष्य के पास घर है। What is the house? ये घर क्या है? Are you learning something? क्या कुछ Church? सीख रहे हैं आप? Let's go further. Point number 2. What is the house? और ये घर क्या है? Now, there is a class, it's a demonic spirit that casts its influence. और देखिए ये शैतानी शक्तियां होती है जो अपने प्रभाव को बढ़ाती हैं। What is the house? The house is the realm of influence, और ये घर क्या है? घर जो है ये एक प्रभाव का आयाम है a domain of influence. और प्रभाव का एक क्षेत्र। Write it down. लिख लीजिए। It can be a family. Look ये at me. परिवार हो सकता Look है। at me. Look at me. देखिए देखिए, It can be a family. ये परिवार हो सकता है। Come on. Come on, come on, come on. It can be a family. ये एक परिवार हो सकता है It can be an extended family. और ये एक पूरा घराना जैसा हो सकता है It can be an area. और ये कोई इलाका हो सकता है It can be a city. और ये एक शहर हो सकता है That is the strong man's house. और यही है बलवंत मनुष्य का घर। इतना सुनने में क्या कह रहा हूं? This is what I want you to understand. और यही चाहते कि आप समझें। The moment these things are revealed to you, और जिस पल ये चीजें आप पर उजागर हो जाती हैं, God will use you as a Moses. परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेगा मूसा के समान। Oh, this is powerful, sir. चलिए ये तो बहुत ही जबरदस्त I है। said this is powerful. हमने कहा बहुत ही जबरदस्त God है। will use you like a Joshua. परमेश्वर आपको यहोशू के जैसा इस्तेमाल करेगा। Hey, hallelujah. सुनिए। You will just go and say things and people will start receiving deliverance. Pa, pa, और pa, आप pa. बस जाकर बोलेंगे और लोग छुटकारा पाने लग जाएंगे। That's what Jesus says. जैसे यीशु ने कहा, If one man can believe, his entire household will be set free. अगर एक मनुष्य विश्वास करे उसका पूरा घराना उद्धार पा लेगा। Somebody lift your hand and shout an amen, somebody. तो अपने हाथ चिल्लाए आमीन इस समय। God just needs one man, one woman. परमेश्वर को बस एक आदमी एक औरत की जरूरत है। Now you're getting it now. अब आपको समझ में आ रहा है। Hallelujah. हालेलुया। पास्टर मैं अकेला हूं, नन्ना मुन्ना। अच्छा अच्छा पास्टर मैं ही विश्वास करता हूं। एक रोना बंद कर यार, मीना कुमारी, रोना बंद कर। कोई कोई लोग रोते रहते हैं, नो एक्शन। कोई कार्य नहीं करते। God can use you. You have to understand it. Everyone say a revelation will bring revolution. सभी लोग कहे प्रकाशन जो है वो क्रांति को लेकर आएगा। Hallelujah. कहे हालेलुया। I said hallelujah. मैंने कहा हालेलुया। Is anybody following me right now? कोई समझ रहे हैं इस वक्त? Yes. So a house is the sphere of influence. हो सकता है उसने तुम्हारे बच्चों को पकड़ा है, तुम्हारे पोतों को पकड़ा है, तुम्हारे सब इर्द गिर्द जो रहते हैं, तुम्हारी फैमिली उनको पकड़ा है। तो you have to understand. आपको समझने की You have जरूरत है। to ask God, God open my eyes. आपको परमेश्वर से मांगना चाहिए, परमेश्वर मेरी आंखें खोल दे। The second thing, दूसरी चीज rather the third thing. या कहे तीसरी चीज। Let's go further. चलिए आगे बढ़ते What हैं। are the goods? And plunder his goods. Everyone say plunder his goods. और उसका माल न लूट ले। देखिए ये उसका माल या उसका सामान, ये चीजें क्या है? What are his goods? और देखिए उसके ये सारे माल क्या हैं? Write it down. लिख लीजिए। His goods are people. उसका माल जो लोग हैं। What do you mean people, pastor? और अब ये लोग Luke chapter 13 verse 16. लूका का 13वां अध्याय 16वां वचन। Jesus came to the woman. और यीशु एक औरत के पास आए She was hunched back like this for 18 years. और पिछले 18 सालों से देखिए वो ऐसे कुबड़ी हो गई थी। Come on, yes or no? हाँ या नहीं? And Jesus lays hands on her और यीशु अपना हाथ उस पर रखते and says, ought not this daughter of Abraham to be set free, whom Satan has bound for 18 years? और यीशु कहते हैं अब्राहम की ये बेटी क्या जिसे शैतान ने बांध रखा आज छुड़ाई नहीं जानी चाहिए थी? So people are his goods. तो देखते हैं लोग उसका माल है। Hello? सुने
If your husband is set free, oh my God, he will be such a blessing. So enemy holds him. देखिए अगर आपके पति को छुटकारा मिल जाए तो एक बहुत बड़ी आशीष बनेगी, इसलिए शत्रु से पकड़े रखता है People are his goods. और लोग उसका माल हैं। Come on, come on, come on. Secondly, write it दूसरा। down. What are his goods? उसका ये सामान, उसका माल क्या है? Blessings. आशीषें। Blessings are his goods. आशीषें उसका माल है। Come on, hello. You know, one day I had a vision. I was in a fast. और देखिए पासवान जी एक दिन दर्शन देखा और उपवास में थे ये I was praying. और प्रार्थना कर I रहे was थे, praying in the spirit. आत्मा में प्रार्थना कर रहे And थे I saw people's prayers rising like incense. और इन्होंने देखा लोगों की प्रार्थनाएं जो है सुगंध धूप के समान उठ रही थी And suddenly there was a rain of parcels from up. और अचानक ऊपर से जो पार्सल के जो बारिशें होने लग गई And the parcels were falling like, hello, are you there, listen? और They're पार्सल गिर falling, रहे and थे suddenly they were stopped and one hand holding them. और अचानक रुक गए, एक हाथ ने उन्हें ऐसे रोके रखा I said, God, why is it not reaching the people? और इन्होंने कहा परमेश्वर क्यों ये लोगों तक नहीं पहुंच रहा? He says, Michael, the enemy is holding their blessing. तो प्रभु ने कहा शत्रु ने जो आशीषों को पकड़े रखा है। Just imagine this. जरा कल्पना करिए इसकी। How many Christians you know who are multimillionaires? कितने मसीह लोगों को आप जानते हैं जो कि एकदम करोड़पति अरबपति और हैं कोई कोई लोग आके प्रचार करता हो, prosperity from the devil. Prosperity from the devil. Please empty your bank account in 2 hours. अरे तेरे बच्चों को क्या खिलाएगा रे तू? कितने लोग सुन रहे हैं? What will you feed your wife? What will you clothe you? Your wife says, I want that dress for Christmas. Prosperity from the devil. Eh? How many are understanding this? कितने समझ रहे हैं इसे? Listen. Money is not our God. पैसा हमारा परमेश्वर नहीं। बाजू वाले को बोलो, टोपी को टोपी के जगह पे रखो, जूतों को जूते के जगह पे रखो, यीशु को इधर रखो, पैसे को उधर रखो। प्रॉब्लम पैसे में नहीं है, पोजीशन में है। तो ये लोग प्रार्थना कर पैसों के लिए प्रार्थना नहीं, पैसों के लिए प्रार्थना नहीं करेगा तो बैंक में जाओ क्या? उसके विषय में तो नहीं बात करता। पापा गॉड से नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? है प्लीज टोपी को पैरों में मत पहनो, गिरोगे। जूतों को कितने भी 50,000 के भी जूते हो, सर पे नहीं पहनता कोई। बोले 50,000 के जूते, पागल, जूते पैर में पहन। नहीं बोले नाइकी के तो क्या हुआ? Don't be a psyche, So it's not the problem about the goods, it's a problem about the position. Look at somebody, say position. जोर से बोलिए position. No, where Jesus is your Lord. He is the head. Come on, और यीशु hallelujah. आपका प्रभु है, वो सिर है Somebody shout hallelujah. Put him over there. और वहीं पर रखे उसे, Put him over there. वहीं पर रखे उसे। कोई दूसरा स्थान दोगे तो वो गलत है। Is anybody listening over here? I'm telling you, sir. So don't buy into these foolish things. तो इन बेवकूफी भरी चीजों में मत फंसो। Always honor the Lord. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness. That's all. और हमेशा परमेश्वर का आदर करें। सबसे पहले परमेश्वर राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करें, इतना ही। Somebody say praise the Lord. कोई तो कहे प्रभु की स्तुति हो। अपने पैसों से आप ब्लेसिंग्स नहीं खरीद सकते हो। हाँ, वर्शिप कर सकते हो, ब्लेसिंग खरीद नहीं सकते हो। ये सब आपको जानना है। रॉन्ग टीचिंग, और उसमें तुम आग डाल रहे हो और पब्लिक सोच रही है कि हाँ, गरीब रहना प्रभु की स्तुति होती है। I like what Reverend Paul Tangaya says. और रेवरेंड पॉल तंगया जी ने जो कहा, He says, my help does not come from the west. My help comes from the Lord. उन्होंने कहा कि मेरी मदद पश्चिम से नहीं आती, मेरी मदद प्रभु से आती है। कितने लोग सुन रहे हैं? हम लोग रुके हैं, कोई अमेरिका से $1 फेंकेगा तो हम लोग के मुंह में गिरेगा। तब हम कुछ काम करेंगे। नहीं सर, इंडिया इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। भारत देश दुनिया भर के देशों में सर्वोच्च है। Somebody say praise the Lord. Teach the people the right thing. So the enemy holds the blessings. तो शत्रु आशीषों को पकड़े रखता है। Somebody say holds the blessings. कोई तो कहे आशीषों को पकड़े रखता है। क्योंकि मालूम है अगर ये आदमी अगर ये ब्लेस हो जाएगा ना, खलास, क्योंकि इसके अंदर यीशु है। अगर ये ब्लेस हो जाएगा ना तो गरीबों को ब्लेस करेगा, इसको ब्लेस करेगा। सर ये जो लोगों के पास पैसे हो, इतने इतने करोड़ों अरबों रुपए हैं, तो क्यों ये लोग ऐसा नहीं करते? बिकॉज दे विल नॉट, क्योंकि वो नहीं करेंगे। The enemy knows that. शत्रु जानता है, The enemy knows that. शत्रु जानता है। They will wear
a watch which is of 10 crores. But come on. 10 करोड़ की वो घड़ी पहनेंगे And you are praying, God, if I had 10 crores, I will bless the widows. I will do this. I will do this. No, listen. सुनिए Then पहले। why is God not giving you, sir? God has already released it. The blessing has been holding somewhere. Today, please open your spiritual eyes. Today, that breakthrough has to come in your life. In the name of Jesus, आज अपनी raise आंखें your खोलिए। raise your voice and say hallelujah right now. चलिए आज अपनी आवाज ऊंचा उठाकर कहें Today, हालेलुया you know, I like what Papa Morris Cerullo says. It's time the Christian decides to declare war on the devil's war. Hallelujah. That is Papa Morris spiritual Cerullo- warfare. Somebody shout a biggest hallelujah. कोई तो जोर से चिल्लाएगा हालेलुया Praise the Lord. प्रभु स्तुति हो Papa Morris Cerullo is in heaven, but I often refer to his teachings. बाबा मौर्य सरोवर जी तो स्वर्ग Man में of है लेकिन God. He's a Jewish अक्सर man, के शिक्षणों को बताते हैं orphan boy. एक But he अनाथ knew लोग, how to give the devil a whip. लेकिन शैतान को कैसे पछाड़ना होता है अच्छे से उन्होंने Praise जाना the Lord. प्रभु स्तुति हो I said, praise the Lord. What are his goods? His goods are people. His goods are blessings. Third, his goods are callings. और देखिए उसका माल जो है लोग हैं आशीष है तीसरा जो उसका माल है वो है बुलाहट Everyone say callings. Three things I want to discuss. There are many things, but callings. You see some person, आप देखते कुछ लोगों को they're always running from here to there. और वे हमेशा बस यहां से वहां भागते रहते हैं आज संडे क्यों नहीं आया? मैं उधर गया था. उधर कौन आया था? वो आए थे. अच्छा, वो आए थे. और दूसरे तीसरे संडे वो आए थे. अरे तू भागते रहता है. A tree that roams never catches roots. और एक पेड़ जो यहां वहां भटकता रहता है घूमता रहता है कभी वो जड़ नहीं पकड़ेगा कितने लोग सुन रहे हैं? Listen sir, सुनिए क्या आपको लगता है कि अभी लोग आते हैं? पहला लोग नहीं आते थे क्या? But I did one thing. लेकिन एक चीज उन्होंने किया I was wise enough to submit to my pastor who was a truck driver. I submitted to him and today I am a pastor. और इतने बुद्धिमान इन्होंने दिखाया कि इनके पास में जो ट्रक But the ड्राइवर थे, problem with you उनके is, अधीन में अपने आप को सौंपा the problem with you लेकिन is, आपके साथ समस्या यह है तू लाइट धुएं के पीछे भागता है और तेरे मुंह खोलेगा तो धुआं ही आता है. You never learn. आप कभी नहीं सीखते That is what the enemy is doing to the people in the Christian world today. और यही चीज तो शत्रु जो है मसीह जगत में आज कर रहा अरे है तू अपना घर छोड़ के, अपना काम छोड़ के यहां वहां भटक रहा है. तू काहे का लीडर है रे? Praise the Lord. यीशु मसीह सुनिए, अगर परमेश्वर ने तुम्हें 4 भेड़ें दी हैं जो इतने खुश नहीं है, जो व्हाइट नहीं दिखती है, इंस्टाग्राम पे अच्छी नहीं दिखती है, तुम्हारा काम है वो भेड़ों को धोने का. तुम्हारे काम है वो भेड़ों को चमकाने का. तू व्हाइट इंस्टाग्राम की भेड़ जो है, हेलो, आई एम टॉकिंग टू यू. बाजू वाले को जिनको समझ है समझ जाओ, नहीं तो पड़ोस को समझ जाए बोले। तो रिलैक्स. तीसरा पॉइंट आ रहा है. No, I'm going to give it today, Pastor. Hallelujah. कहे हालेलुया What kind of a leader you are? किस तरह के अगुवे हैं फिर आप What kind of a leader? किस तरह के अगुवे The enemy holds your calling. शत्रु जो आपकी बुलाहट को पकड़े रखता है Your enemy holds your calling. शत्रु आपकी बुलाहट को पकड़े रखता है What nonsense are you doing? क्या बेतुका चीजें आप It's कर रहे हैं better you say, boss, I want to go into the world. Get out. अच्छा है कि आप कहें कि देखो मैं संसार में जाना चाहता हूं ऐसा बोल के निकल जाए God can raise a shepherd boy like David. परमेश्वर दाऊद के जैसे गड़रिए लड़के को खड़ा God करेगा doesn't need a Saul. परमेश्वर शाऊल की God जरूरत doesn't need a Vashti. Hallelujah. परमेश्वर को वास्ती की God जरूरत can raise an Esther जो कहां से खेत से उठा कर लेके आए थे. ओ खुदा उसको ऐसा चमकाएगा और रानी बना देगा. Hallelujah. Somebody bless the Lord and say hallelujah. प्रभु को धन्य कहे चिल्ला God doesn't need a model. He needs a woman who is available. और देखिए परमेश्वर किसी मॉडल की जरूरत नहीं उसे एक ऐसी स्त्री चाहिए जो उसके लिए उपलब्ध हो Somebody say hallelujah. हालेलुया The enemy holds your calling. शत्रु आपकी बुलाहट को पकड़े रखता Today, है can you fulfill your call? आज क्या आप अपनी बुलाहट पूरा करेंगे Some of you are sitting on your chairs. और आप में से कुछ लोग बस अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। So when you come on the Sunday, तो जब आप रविवार को आते हैं the chair says welcome. कुर्सी कहती है स्वागत है How do you know me? अरे तुम्हें कैसे पता है मेरा नाम AI AI says I've recognized the shape now. मैंने आकार को पहचान लिया है So many months you're sitting on the Rang Sharda. कई महीनों से रंगशादा में आके बैठते रहे तुम You sit and you laugh. Hallelujah, तुम बैठ के hallelujah. हंसते थे हालेलुया हालेलुया बोल के AI.
Don't laugh. Today, you don't know whether to laugh or to cry now. When will you fulfill your call? कब आप अपनी बुलाहट पूरा करेंगे? नहीं, मुझे खुश मस्ती मजा आता है. पास्टर हंसाते. लास्ट संडे नहीं थे. When will you fulfill your call? कब आप अपनी बुलाहट पूरा करेंगे? Look at somebody and say, when will you fulfill your call? किसी को देखकर Some of कहें, you are pastors. आप में से कुछ लोग Some of you are पासवान, leaders. कुछ अगुवे हैं, Some of you are evangelists. कुछ सुसमाचार Some प्रचारक of you are worship leaders. कुछ आराधना के अगुवे But हैं। you got hurt somewhere. लेकिन कहीं तो कुछ है सही। Somebody said something to you. किसी ने कुछ तो कह दिया आपसे। You know the puppy when you throw water. I love puppies. छोटे पप्पी जो होते हैं कुत्ते के बच्चे, Puppy? थोड़ा कुछ बोलेगा तो गुस्सा आता तुमको. ट्रेन में क्या तुमको वेलकम करती है? आइए, कुर्ला के महाराज आए, आइए. अरे महाराज गए, चढ़ना है तो चढ़. महाराज उतरता है तो कपड़े एक बाजू में, महाराज आगे दूसरी. हेलो, दिस इज द रियल. बट इन चर्च लेकिन कलीसिया में you're so touchy. आप बहुत ही ऐसे नाजुक होते हैं. Touchy. You don't know whether to laugh or to cry. आपको समझ में आ रहा है आपकी हंसे या रोए? Satan has held your calling शत्रु ने आपकी बुलाहट को पकड़े रखा है and you're doing nothing about it. और आप कुछ नहीं कर रहे इस बारे में. I'm blessed with the job, Pastor. पासवान जी, मैं नौकरी से आशीषित हूँ. I'm blessed with my new bike. As if you're going to take the bike to heaven. मेरे नई बाइक से मैं बहुत खुश हूँ. I'm जैसा कि happy आप with the bike. I'm happy with the car. But I still don't know of any car that is driven to heaven. नहीं पता कोई वो कार जो हमें स्वर्ग ले जा सकते, ऐसी कोई कार नहीं. What about your call? आपकी बुलाहट के बारे में क्या? What about that call that is on your life? You are a pastor. You know it. You know it. You're a pastor. वो बुलाहट के बारे में You क्या know जानते it. You're हो? an evangelist. You know you are an apostle. You know you're an administrator. But you play games. आप जानते कि आप एक पासवान, एक सुसमाचार प्रचारक, आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप बस खेल खेल रहे हैं. You can ask this woman, Pastor Juliet. You can ask this, sit down, Pastor. You can ask this woman, Helen. You can ask certain other senior women. I've lived with them as a brother to them. When will you fulfill your call? कब आप अपनी बुलाहट पूरा करेंगे? I've never uttered even a word of suggestion. Pastor Juliet, you've been with me for how many years? More than 20 years. When will you fulfill your call? कब आप अपनी बुलाहट पूरा करेंगे? I want to challenge you this morning. इस सुबह आपको चुनौती देना चाहते हैं. Isaiah, God told Isaiah, he said, yes, Lord. जब परमेश्वर ने यशायाह से कहा तो यशायाह ने कहा, परमेश्वर ने तुम्हारे हाथ में जो छोटे छोटे भेड़ दिए हैं, वो शायद इतने अच्छे नहीं दिखते, गंदे हैं भेड़, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है इस सोशल मीडिया पर, क्योंकि बाहर के भेड़ जो है एकदम वाइट भेड़, ओ प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ऐसे बात करते हैं. हमारे भेड़ तो क्या रे, ऐसा बात करते हैं. तो तुम उन भेड़ को छोड़ के चले जाते हो, लेकिन खुदा तुम्हें देख रहा है कि वो 3 भेड़, तुम पिता के तुम्हारे 3 भेड़ तुम उसको पाल नहीं सके और तुम दुनिया में घूम रहे हो. शैतान ने तुम्हारी बुलाहट रोक दी है, आप ये नहीं जानते हो. I want to talk to the leaders today. अगुवों से कहना चाहते हैं I आज. want to talk to all the pastors, the group supervisors. सभी पासवान और ग्रुप I सुपरवाइजर से कहना believe चाहते in हैं. building a church कलीसिया को बांधने में देखिए विश्वास करते हैं that is on the cutting edge of the Holy Spirit. जो कि पवित्र आत्मा की तेज धारदार लिए हो. Come join me if you really want to serve God. अगर सचमुच आप प्रभु की सेवा करना चाहते हैं तो आकर जुड़ जाएं इनके साथ. Like Paul, I can say, फिर पौलुस के जैसा कह I सकते हैं, labored more than them. मैंने इनसे ज्यादा परिश्रम किया है, Yet not I, but the grace of God. लेकिन मैंने नहीं, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह ने. Hallelujah. Many people ask me, how do you do it? I said, I really don't know how I do it. बस लोग पूछते हैं कैसे आपने किया, कहते हैं कि मुझे नहीं पता कैसे किया है मैंने. Satan has stopped your call. These are the goods. You're only worried about the gold and the silver. And please, I'm not against it. Please have it. And if you have more, the offering bag is coming. I'm not against that. इनके खिलाफ में नहीं है, But what about your call? लेकिन आपकी बुलाहट के बारे में क्या? Satan holds people. Satan holds blessings. Satan holds callings. और शैतान जो लोगों को, आशीषों को, बुलाहट को पकड़े रखता है, The strong man does it. और देखिए बलवान मनुष्य करता है.
I don't know what is your reason not to serve God. What is your reason? पता नहीं कि आप क्या क्या वजह है कि आप प्रभु की सेवा नहीं कर रहे. Then binding the strong man. How can we bind the strong man? फिर ये है कि उस बलवंत मनुष्य को हम कैसे बांध सकते हैं. Everyone say binding the strong man. सभी लोग कहे. I want to give you 3 things. 3 चीजें देंगे. The first one. पहला है, You can bind only by a superior authority. आप देखिए उससे भी जो सर्वोच्च अधिकार है उसी के जरिए बांध सकते हैं. Write it down. Go quickly. Now we'll go fast. Now you understood. अभी आप समझ गए. आज आपको नहीं पता चला कि हंसू के रोम है. बोले हंसाता भी है, मारता भी है, क्या करता समझ में नहीं आता. Luke chapter 11. See, the whole church is silent now. देखिए पूरी कलीसिया अब चुप हो गई है. Luke chapter 11 verse 22. When a stronger than him comes upon him, a stronger than the strong man comes upon him and overcomes him, he takes from him all his armor in which he is trusted and he divides his spoils. पर जब उससे बढ़कर कोई और बलवान ताकतवर चढ़ाई करके उससे जीत लेता है तो उसके वे हथियार जिन पर उसका भरोसा था छीन लेता है और उसकी संपत्ति लूटकर बांट देता है. How do you bind the strong man? कैसे आप बलवान मनुष्य को बांधते हैं? With a superior authority. उससे भी बड़े सर्वोच्च अधिकार Write से. it down. With a superior authority. How do you bind the strong man? With a superior authority. Pastor, I am very ordinary person. I'm not talking about you. और पासवान जी मैं तो बहुत ही एक साधारण सा व्यक्ति हूं. देखिए आपके बारे में नहीं कह रहे हैं. Oh, Pastor, no. I'm not talking about you. आपके बारे में नहीं बोल रहे. I'm talking about your identity in Christ. मसीह में जो आपकी पहचान है उसके बारे में कह रहे हैं. Hallelujah. क्या हालेलुया. I said hallelujah. हमने कहा हालेलुया. Is anybody listening over क्या कोई सुन रहे हैं here? यहाँ Many years back, कई साल पहले I was called to a house, और पासवान जी को घर में बुलाया गया था and in that house, और उस घर में listen to this. सुनिए इसे. There was this demon that was jumping from one person to another person, और वहां पर एक दुष्टात्मा का ऐसा प्रकोप था कि एक व्यक्ति पर से दूसरे व्यक्ति पर वो छलांग मारते and they रहते had warned us और उन्होंने हमको चेतावनी दिया था that if you pray for those people, one person dies. कि अगर आप ऐसे व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें तो एक व्यक्ति उनमें से मर जाएगा. I said, God, now what to do? अब क्या करूं प्रभु. Listen to this. सुनिए. And my prayer, that time I was not even a preacher, not even a pastor, not even anybody. And I was crazy for the Lord. So my pastor took me along with him. तो इनके पासवान इनको अपने साथ में लेकर गए. So he says, Michael, what do you want to do? So I said, I want to lay hands. So young boy. एक नौजवान युवक के रूप में इन्होंने कहा मैं हाथ रखना चाहूंगा. And that time of fear came inside of my heart. और एक डर इनके हृदय में आया उस Because वक्त. one of the leaders said, क्योंकि एक अगुवे ने कहा Samala, एक मरेगा. I was a young man. एक नौजवान युवक. Please, I want to show you my weaknesses, my failures. अपनी नाकामी अपनी कमजोरी को आपके सामने बताना चाह रहे हैं. मैं हमेशा अपनी डिंग नहीं मारना चाहता हूं. मैं आपको बताना चाहता हूं मैं किस तरीके से स्ट्रगल किया और कैसे प्रभु ने मुझे हेल्प किया. सामने वाला बोल रहा है संभाला मरेगा. वही मेरे साथ प्रार्थना के लिए आए, कान में बोल रहा है संभाल मरेगा कोई. क्योंकि 3 दिन पहले एक जन मर गया था उनके फैमिली में. अभी हम लोग पूरा चाली में लफड़ा करते थे और अभी हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं पूरी चाली कट. हेलो, आप लोग बिल्डिंग वाले हैं सर, हम लोग चौल से आए हैं. जब एक चौल में लफड़ा होता है ना तो सब चौल वाले जमा होते हैं. बिल्डिंग में लफड़ा हो जो कोई बाहर नहीं निकलता है. चौल में अच्छा है सिस्टम है. So when I started praying, तो जब इन्होंने प्रार्थना करना शुरू the किया fear came, डर आया अंदर and that time I started praying in tongues. और उस वक्त इन्होंने अन्य भाषा प्रार्थना करना शुरू And the किया Holy Spirit और says, पवित्र आत्मा ने कहा Michael, Michael, you are not casting the demon in your authority. तुम दुष्टात्मा को अपने अधिकार से नहीं निकाल रहे हो. That time the scripture came. उस वक्त वचन आया He says, in my name. मेरे नाम में. I said, whoa. Listen. सुनिए. Many people, they think they are casting out demons. और देखिए बहुत सारे सोचते हैं कि वो खुद दुष्टात्मा को निकाल रहे हैं. इसलिए तुम कबड्डी खेलते हो. हाँ, तुमको डीमंस पे अगर किसी दुष्ट आत्मा पर प्रार्थना करे कोई बहने लोग, अरे हात लग ना, त्याचा आतमध्ये आलं तर, अरे वाह. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस चर्च. आपको समझने की जरूरत है. Many people say, उसपे मैंने प्रेयर किया ना, अटैक आया. अटैक के मारो गोली ऐसी की तैसी. अटैक तुम पर नहीं, अटैक उन पर आएगा, शैतान पर आएगा. Never walk in that revelation. अटैक. और तुम प्रार्थना करेंगे ना, अटैक आता है. हट. कभी भी इस विचारधारा में मत चलना कि जब तुम प्रार्थना करोगे तो आप पर हमला होगा. कितने लोग समझ रहे? अटैक.
You have a fear mindset. आपके अंदर डर की मानसिकता है। Praise the Lord. प्रभु स्तुति हो। I said, praise the Lord. When you go to Delhi, you cannot say attack, attack, attack. You will not get off the airport. जब आप दिल्ली जाएंगे तो ऐसा नहीं You करना are है। not casting out demons. Listen, leaders. सुनिए ध्यान से अगुवे And लोग। listen, all you people. और सभी लोग सुने, You have to be like your pastor. आपको अपने पासवान जैसा होना चाहिए। Andrew, that time, the Holy Spirit spoke to me and said, son, उस वक्त पवित्र आत्मा ने कहा, you बेटी, are not casting demons in your name. तुम अपने नाम में दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल रहे हो। I said, मैंने कहा, in my name. It says, मेरे Holy नाम। Spirit speaking to me. पवित्र आत्मा इसे बोलने लगा। That time, उस वक्त I said, you know what I did? इन्होंने क्या किया पता है? See that word of wisdom now. देखिए बुद्धि का वो वचन। I said, now, अभी इसको प्रेयर किया तो demon यहां से इधर आता है, इधर कुत्ते में demon आता था. They had a nice Alsatian. The छोटा सा fellow Alsatian used to go कुत्ता like that, like that, like that. और कुत्ता ऐसा घूमने लग जाता था। I'm telling you, such wicked spirit. और ऐसी दुष्ट बुरी आत्मा। You know what I told them? आप जानते हैं उन्होंने क्या कहा? Hold hands, everybody. सभी लोग एक दूसरे का हाथ पकड़े। They held hands. एक दूसरे का हाथ उन्होंने पकड़ा। That girl carried a dog. और उस लड़की ने कुत्ते को अपने बाहों में लिया। I kept a hand on one person. एक व्यक्ति पर इन्होंने हाथ रखे। All four of them fell. चारों के चारों गिर गए। That family today is serving God. Hallelujah. परिवार आज प्रभु की सेवा कर रहा है। You understand this what I'm saying? आपको समझ में आया? Ministries are not just born by style and smoke. और Ministries are born through breakthroughs. और सेवकाई बस ऐसे ही स्टाइल से धुएं से जन्म नहीं लेती है, लेकिन बड़े बड़े ब्रेक थ्रू आशा का मौका Go देती in है। your house today. आज अपने घर में जाइएगा। Stand there in the name of Jesus. अब आप खड़े हो यीशु के नाम में। Say in the name of Jesus. यीशु के नाम में। I command every evil powers, hey, हर एक शैतान शक्ति को holding my family. जिसे हमारे परिवार को पकड़े रखिए। Leave now. निकल अभी। Leave now. निकल अभी। In the name of यीशु Jesus. के नाम में। The blessing of the Lord is upon my home. प्रभु की आशीष मेरे घर पर है। You must talk like that. आपको इससे से बात You करनी must चाहिए। talk like that. आपको ऐसा बोलना चाहिए। You will see the glory of God in your life. आप परमेश्वर की महिमा अपनी जिंदगी में देखेंगे। Somebody give Jesus a praise. Hallelujah. कोई यीशु ताली की भेंट चढ़ाए। हालेलुया। Is anybody listening over here? देखो सुन ले यहाँ पर। That's how it's a superior authority. और ये एक सर्वोच्च अधिकार है। Bible says in Ephesians 1. बाइबल कहती है फिजिकल पति पहला He says, because you have believed in me, और क्योंकि तुमने मुझ पे विश्वास किया you है, are seated in Christ in heavenly places. तुम मसीह में स्वर्ग के स्थानों में बैठे हुए हो। You are not an ordinary person. अब आप साधारण से व्यक्ति नहीं You हैं। are a child of आप God. परमेश्वर की संतान हैं। I said you are a child of आपने कहा God. परमेश्वर की संतान हैं। When the prodigal son came to the father's house, जब बुढ़ाऊ बेटा पिता के घर में आया, he said, Pita, उसने कहा पिता, मुझे एक slave, take me as a slave. मुझे अपने दास गुलाम के रूप में रख ले। But the father said, लेकिन पिता ने कहा, hold. ठहरो, He said, hey, सुनो, मेरे son के लिए, मेरे बेटे के लिए मेरा कोट लेकर आना, जो टॉम फोर्ड के से सुगंधित है। हालेलुया, उसने कोट पहना। सब लोग उसको देखे, अरे बोले ये तो मालिक का बेटा है। आपके वस्त्रों से पहचाना जाता है आप मालिक के बेटे बेटी हो। You are a child of God. आप परमेश्वर की संतान When हैं। you wear the robes of righteousness, जब आप धार्मिकता के वस्त्र पहनते when हैं, you wear the robes of Jesus, जब आप यीशु के वस्त्र पहनते हैं, somebody say तो hallelujah. लगाएंगे हालेलुया। Young man, open your mouth and shout a hallelujah right नौजवान युवक now. अपना मुख खोले चिल्ला हालेलुया इस You समय। have to learn and to understand that authority. आपको सीखना और आपको समझना है उस अधिकार को। Reverend Kenneth, don't say, don't talk like that. ऐसा नहीं करना, आपको बोलना नहीं ऐसा। Hello, are you listening? आप सुन रहे हैं इस वक्त? Take hold. Say, Mama, come, let's pray. और अपने माँ से कहा, माँ चलो प्रार्थना We करेंगे। are on the 22nd day of the fast. हम उपवास के 22वें दिन में, 23rd. 23वें दिन में, 17 days remaining. 17 दिन बचे हैं। 17 days, you must fast and pray. The 17 दिन second आपको point. उपवास और प्रार्थना में लगना Write it down चाहिए। the second point. दूसरा मुद्दा लिख लीजिए। Jesus said, यीशु ने कहा, these kind of demons does not go except by fasting and prayer. इस जाति की दुष्ट आत्मा बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं निकलती। Somebody shout hallelujah. कोई चिल्ला हालेलुया। You know, डोसा बोसा खा के डकार मत मारना, मसाला डोसा बाहर आएगा। नहीं सर, उस दिन जब मैं प्रार्थना करने गया था तो ऐसे ही नहीं गया था जो मैं आपको टेस्टिमनी दी। 3 दिन उपवास किए थे, मुझे पता है कि क्या होने वाला है। Are you listening, sir? आप सुन रहे जनाब? जब दिल्ली में गया था तो पूरी रात भर में नहीं सोया था, लेकिन पास्टर बोले, पास्टर जी आप पूरे रात भर ट्रैवल किए हैं। मेरी स्टाफ वाज ट्रैकिंग मी, रात मेरी बेचारी बीवी वाज ट्रैकिंग मी। Michael, are you reached? Are you reached? Whole night I was traveling. They offered me breakfast. बोले पूरी रात भर आप सोए नहीं हैं, अब खाना खा लो। उन्हें बोला नहीं, उपवास और प्रार्थना करना है। Is anybody listening over क्या here? सुन रहे हैं यहाँ पर? Yes. You can't go like on a full stomach and say, in the name of Jesus. Hey, आप पेट भर के ऐसा जाकर यीशु के नाम में नहीं वो बोल सकते। डकार आएगा। Hello, are you listening, church? आप सुन रहे हैं कलीसिया? Yes.
Many believers are like that. देखिए बहुत सारे लोग विश्वासी ऐसे होते थोड़ा हैं, सा फास्टिंग किया उन लोग झूमने लगता है, झूम 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 अरे झूमा. और वो इन्फ्लुएंसर लोग 48 घंटे उपवास करते हैं और इंस्टाग्राम पे डालते हैं, और हम लोग की पब्लिक जो है 12 घंटे में घूमते रहते हैं. Second thing, fasting and prayer. Say it everybody, fasting and prayer. दूसरी चीज है उपवास और प्रार्थना. Come on, say it loudly, fasting and prayer. जोर से कहें उपवास और प्रार्थना. Say it one more time. फिर से एक बार कहेंगे. I want, if you have not joined me, I want you to join me. Those are watching me online, begin to join me right now. अगर आप जुड़े नहीं तो आपसे आग्रह करते हैं जुड़ जाइए. जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं आप भी जुड़िएगा. And the third one. और तीसरा है. Third one. The first one is knowing your authority in Christ. और पहला है मसीह में अपने अधिकारों को जानना. Second thing is fasting and prayer. और दूसरा है उपवास और प्रार्थना. Spend time in prayer. प्रार्थना में समय बिताएं. Spend time in fasting. उपवास में समय बिताएं. Hallelujah. And the third one. और तीसरा. Write it down. The last one. आखिरी है. Listen to me. सुनिए. If you really want deliverance. अगर आपको सचमुच छुटकारा चाहिए. Hey, listen, everybody. सुनिए सभी लोग. All those, everybody listen. सभी ध्यान से सुनेंगे. If you really want deliverance, अगर and a सचमुच breakthrough, आपको छुटकारा चाहिए, you must soak yourself in the word. आपको अपने आप को वचन में पूरी तरह समा लेना है. मेरे साथ, मेरे इधर देखिए इस वक्त, कोई भी हिलेगा नहीं अभी. सुनिए, इस 17 दिन में जितना बाइबल पढ़ सकते हो उतना बाइबल पढ़िए. और जब आप पढ़ते हैं, सुनिए इस वक्त, ना फोन बंद करो और वचन में बात. और वचन खत्म करने के लिए मत पढ़ो, वचन अंदर जाने के लिए पढ़ो. स्लोली पढ़ो, थोड़ा आवाज से पढ़ो. Are you listening, church? God's word says, परमेश्वर का वचन कहता है, you तुम shall know, you shall not hear, know the truth, and the truth that you know shall make you free. तुम सत्य को जानोगे और जो सत्य तुम जानोगे वो तुम्हें स्वतंत्र करेगा. प्रॉब्लम यह है कि तुम्हारी माँ तुमको बोल रहे हैं, बाबा, बेबी, वो ट्रूथ नहीं है. बेचारी बोल रही है, माँ बाप बेचारा बोल रहा है, लेकिन जो वचन आपसे बात करता है ना, हाँ, वो आपको छुटकारा देगा. सुनिए, बोले मैं पढ़ नहीं सकती तो ऑडियो बाइबल डालिए. बोले मैं पढ़ नहीं सकती तो ऑडियो बाइबल डाले. किसी से डाउनलोड कराए, बोले सर, पास्टर, जेट वे लीडर बताइए. अगर उनको भी नहीं मालूम तो लीडर बदली कीजिए. Pastor, you're very hard today. Yes, I am. It's time we do the work of God and set people free. ये समय आ चुका है कि हम परमेश्वर काम करें और लोगों को आजाद करें. Praise the Lord. So the first one, तो पहला है know your authority in Christ. मसीह में अपने अधिकारों को जानो. सब जो मेरे साथ बोले, यीशु मेरा प्रभु है. बोले यीशु मेरा प्रभु है. बोले ना, यीशु मेरा प्रभु है. यीशु मेरा प्रभु है. Jesus is my Lord and Savior. यीशु मेरा प्रभु और उद्धार करता है. खत्म. बोले प्रभु मैं तेरे पास आता हूं, मेरे जीवन में आ जा. मैंने बहुत सारी गलती किया, मुझे क्षमा कर प्रभु, मुझे इस्तेमाल कर. खलास, तू प्रभु के बच्चे. दूसरा फास्टिंग एंड प्रेयर. उपवास और प्रार्थना. फास्टिंग एंड प्रेयर. उपवास और प्रार्थना. बी सीरियस. गंभीर हो जाए. Thirdly, तीसरा just get into the word. वचन में जाए. Hallelujah. हालेलुया.